morning बच्चों। Good morning students. Once again you are most welcome in our school premises of SCVN English School. I hope you and your family all are well and good during this difficult time of corona epidemic. As we all know, now also day to day corona cases are increasing. So it is most important we have to take care of ourselves as well as our family. So how it could be possible? It's because we have to just simply follow the instructions given by the government. What are they? We have to use sanitizer time to time. We have to wear mask whenever we are going outside. And the most important thing, we have to avoid to going outside unnecessarily. And by reason, if you are going, we have to follow the social distancing rule. Means then only we can keep ourselves safe as well as our family. And due to this corona only, the schools are still closed, and the month of April came, and this is the time of second semester exam. So exam will going to held as because the school are closed, but we are studying through the online like the every years we are studying in the class. So now also we are attending all the subjects lectures time to time. So exam will also necessary. Why the exams are necessary? As because assessment is necessary. Due to the assessment only it is possible we have to promote the student to the next class. So for the evaluation we have to take the exam of the student. So very soon you will get the timetable for your second semester exam in your WhatsApp group. How the exam will going to head? Let's see. The exams are going to like first semester you have the oral exam, you have the practical exam as well as written exam. According to your timetable, the exam will going to head. Now, for your exam, you have to take the answer sheet from the schools, like in the first semester. So, day before exam, what the date you have in your timetable. One day before, you have to come to the school and collect your answer sheet, whether A copy or the B copy, and you have to write your answer in that, and you have to submit it in the school before 2 o'clock. Now, how you are going to write? The students, those who are in the Mumbai, and they have to write in that answer sheet what they are collecting from the schools. And the students, those who are out of the Mumbai, they have to take a full scape and write properly name and every detail and write the answers and click the photo, and that's send it in a group. Now, how will get the question paper? The question paper will be uploaded in your WhatsApp group before 10 minutes. Before 10 minutes, the time you have in your time schedule. Yes. So once you get the question paper, write the answers in your answer sheet. And the people, those who are in the village, they can write in the full-scape paper. And after completing your answers, you have to click the photos clearly and make a PDF and submit it in a group before or we can say within half an hour. Like your exams are end at the 11:30, so you should be submit it within a half an hour, means before 12 o'clock. Within half an hour you have to submit. Suppose by any reason you are submitting the answer sheet in a group or by any other method individually to the teacher, so that are not acceptable. You are not getting any extra mark for that sheet. So it's most important you have to submit that in a group within a given time. Now, before we are writing the papers, we have the teachers at front of us. So if we have any doubts, so we are asked the teachers like this much doubt we have, so just solve it. But now you are writing like the first semester at your home. So if you have any difficulty, so how we can do that? Like how we have to write the paper, how we have to arrange that all different kind of the things, the queries we have in our mind. To solve these kinds of the queries, we have our senior teacher Archana Miss. She will going to tell you how we have to write the paper to both of you, the people those who are in the Mumbai as well as to people those who are in the village, in very detail. So let's see. Archana Miss, I request to you just tell them how they have to write the answer sheet. थैंक यू सर। बच्चों, आप सबको पता है कि कोविड-19 की महामारी चल रही है, उसी कारण आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो। लेकिन क्या स्कूल न आने से हमारी पढ़ाई बंद है? नहीं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। बच्चों,
जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमें ऑनलाइन पद्धति से ही सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, ठीक उसी तरह से हमें क्या करना है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। बच्चों, आपको सबको पता ही है कि कोविड-19 किस तरह से फैल रहा है, तो हमें इसलिए हमारी खुद की सुरक्षा भी करना ज़रूरी है। अगर हम खुद सुरक्षित हैं तो हम अपने आप दूसरे को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो अगर हम घर से बाहर निकलते हैं कोई कारण से, तो हमें मास्क लगाना है, आप लगाते ही होंगे। साथ ही साथ सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। अगर आप इन नियमों का ध्यान रखते हो तो आप भी सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। ये हो गई हमारी कोरोना की बात। तो चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेकेंड सेमेस्टर के बारे में जानते हैं। देखो बच्चों, जिस तरह से ऑनलाइन पद्धति से हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से हमें एग्ज़ाम भी देना है। अब एग्ज़ाम के लिए हमें सबसे पहले कुछ तैयारी करना है। आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल इन चीज़ माध्यम से होता है। अब देखो, ओरल के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको विद्यालय में आकर पेपर लेना है। पेपर लेना है मतलब कौन सा पेपर बच्चों, आंसर शीट आप लोगों को लेना है। एक दिन पहले आप लोगों को आंसर शीट अपने विद्यालय से मिलेगा। उस आंसर शीट को आपको लेना है और उसमें आप लोगों को लिखना है। अब किस तरह से लिखना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये हो गई हमारी ओरल की बात। अब रिटर्न के लिए हमें क्या करना है, रिटर्न भी हमारा होगा। तब रिटर्न के लिए जिस दिन हमारा पेपर होगा उसके 10 मिनट पहले, मान लो हमारा सुबह 7:30 बजे से पेपर है, तो 7:30 बजे से पेपर है मतलब 7:20 को आप लोगों को आपका जो ग्रुप बना है, 5वीं का ग्रुप है, 6th स्टैंडर्ड का ग्रुप है, 7th का ग्रुप है, 8th का ग्रुप है और 9th का ग्रुप है। हर कोई अपने अपने ग्रुप में पढ़ाई करता है, तो उसी तरह से आप लोगों को आपके आपके ग्रुप में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आप लोगों को 10 मिनट पहले मिल जाएगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यहाँ से अपने विद्यालय से जो एक दिन पहले आंसर शीट लेकर जाओगे उसमें आप लोगों को लिखना होगा। अब आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब आप लोगों को जो आंसर शीट यहाँ से मिलेगा वो किस तरह से आप लोगों को लिखना है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। देखो बच्चों, ये ओरल की कॉपी है। आप लोगों का जो ओरल होगा ये इस कॉपी पे आप लोगों को लिखना होगा। जिस दिन आप लोगों का ओरल होगा उसके एक दिन पहले आप लोगों को विद्यालय से आके ये कॉपी ले जाना है। देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। देखो हमारा स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा गया है SVN इंग्लिश स्कूल, उसके ऊपर आप लोगों को नाम लिखना है। अब हमें नाम क्यों लिखना है, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, पेपर व्हाट्सएप से भेजोगे, ग्रुप से भेजोगे, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और आप लोगों का आपका रोल नंबर नहीं पता है, इसलिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। देखो बच्चों, नाम लिखते समय ध्यान रखोगे कि आप लोग क्या करोगे, पूरा अपना नाम लिखोगे। अब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी नाम लिखा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आप लोगों ने क्या किया था, बस आप लोगों का बीच का नाम, जैसे आपका ही सिर्फ नाम लिखा था। मान लो अभी 5वीं में प्रवीण नाम के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने सिर्फ प्रवीण लिख के भेजा था। अब हम कंफ्यूज है कि ये कौन सा प्रवीण है, हमें समझ में नहीं आ रहा था, फिर आपको कॉल करना पड़ा। तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, अपना पूरा नाम लिखोगे। देखो अभी मेरा नाम है अर्चना प्रशांत पाटिल। जिस तरह से मैंने यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखा है, ठीक उसी तरह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखोगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं स्टैंडर्ड। आप 5th में पढ़ते हो तो 5th लिखोगे, अगर 6 में हो तो 6, 7th है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9। इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड लिखोगे। उसके बाद आपका डिवीज़न A है, B है, जो आपकी डिवीज़न है वो आप लोग यहाँ पर लिखोगे। अब आप लोगों को रोल नंबर नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप लोग रोल नंबर नहीं लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब उसके लिए आप लोगों को आपके ग्रुप में टाइम टेबल मिल जाएगा, तो जो सब्जेक्ट का ओरल होगा, जिस सब्जेक्ट का रिटन होगा, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है।
और जिस डेट में आप लोगों का ओरल है वो डेट आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। अब उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पर पेज नंबर 1, फिर उसके बाद पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और उसके बाद फिर लास्ट में पेज नंबर 4। इस तरह से आप लोगों को पेज नंबर डालना है। पेज नंबर डालने से आप लोगों को PDF बनाने में, फ़ोटो खींचकर भेजने में आसान होता है, हमें भी चेक करने के लिए इजी होता है। इसीलिए हर बच्चे इसमें पेज नंबर कंपलसरी डालेंगे। अब देखो उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को लिखना शुरू करना है। अब आप लोगों को ओरल का पेपर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये है हमारा ओरल का पेपर। अब हम लोग रिटर्न में चलते हैं। अब हमें रिटर्न में क्या करना है, ठीक उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखा है उसी तरह से आप लोग भी क्या करोगे, अपना पूरा नाम लिखोगे। उसके बाद स्टैंडर्ड, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, अगर 5th में पढ़ते हो तो 5th, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9th में पढ़ते हो तो 9th। स्पष्ट से सुंदर राइटिंग में आप लोग लिखोगे। उसके बाद आपकी डिवीज़न, आप A में पढ़ते हो, B में पढ़ते हो, वो आप लिखोगे। अब आप लोगों को रोल नंबर नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, रोल नंबर नहीं लिखोगे चलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, आपकी सब्जेक्ट का पेपर लिख रहे हो वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डेट डालना है, जो जिस दिन पेपर है वो डेट आप लोगों को यहाँ पे डालना है। अब उसके बाद आप लोगों को देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने मार्जिन लाइन खींचा है, ठीक उसी तरह से आप लोग भी क्या करोगे, मार्जिन लाइन यहाँ पर खींचोगे। और प्रश्न क्रमांक 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने ओरल में पेज नंबर डाला था, ठीक उसी तरह से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह से आप लोग पेज नंबर डालोगे। पेज नंबर डालने से क्या होगा बच्चों, आप जब PDF बनाओगे तो आपको PDF बनाने के लिए आसान होगा, इजी होगा, और आपको भेजने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जिस तरह से मैंने यहाँ पर पेज नंबर डाला है उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से पेज नंबर डालना है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखो, अब ये जो पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया है ये तो आप लोग स्कूल में आकर लेकर जाओगे। मतलब जो बच्चे बॉम्बे में रहते हैं वो ऑब्वियसली स्कूल आएंगे और स्कूल से आके आंसर शीट लेकर जाएंगे। लेकिन जो बच्चे बॉम्बे में नहीं है, किसी कारण से गांव गए हैं, लेकिन गांव से भी देखो कुछ बच्चे जो है गांव से भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं। तो जब वो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो परीक्षा भी देंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, लेकिन उनके पास तो स्कूल का आंसर शीट नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे बाहर है किसी कारण से बॉम्बे में नहीं रहते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से फूल्स के पेपर खरीदेंगे दुकान से। देख लो बच्चों कैसा पेपर है, आपको भी इसी तरह का पेपर खरीदना है। अब उसके ऊपर सुंदर राइटिंग में अपने स्कूल का नाम लिखना है। देखो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है SVN इंग्लिश स्कूल, उसी तरह से आप लोग भी क्या करोगे, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखोगे। उसके बाद आपका नेम, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा है अर्चना प्रशांत पाटिल। देखो बच्चों मैंने अपना पूरा नाम लिखा है, ठीक उसी तरह से आप लोग भी क्या करोगे, अपना यहाँ पर पूरा नाम लिखोगे। फिर स्टैंडर्ड, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो वो आप लिखोगे, कौन से डिवीज़न में हो आप वो लिखोगे, डेट कौन सा है, उस दिन कौन सा पेपर है, कौन सी डेट है वो आप लिखोगे, और आपका सब्जेक्ट क्या है वो आप लोग लिखोगे। फिर उसी तरह से ठीक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, इस तरह से आप वहाँ पे पेज नंबर डालोगे। और देखो बच्चों मैंने भी यहाँ पे मार्जिन लाइन खींचा है, आप लोग भी क्या करोगे, इसी तरह से मार्जिन लाइन खींचोगे। एक बात बच्चों और ध्यान से सुनो, आप लोग जो PDF बनाओगे या फ़ोटो खींचकर भेजोगे उसमें आप लोग इस बात को ध्यान रखोगे कि हमारा नाम इसमें स्पष्ट रूप से आ रहा है या नहीं आ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बच्चों को कोई बात नहीं,
फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ था, कुछ बच्चों का ये जो नाम है, स्टैंडर्ड है, डिवीज़न है, वो ठीक से फ़ोटो खींचा नहीं गया था। उसी कारण से वो पेपर किसका है ये समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम लोग उस नंबर को देखकर आपको कॉल कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर था, हो गया। लेकिन अभी आप इस बार इस बात का ध्यान दोगे कि हम लोग जो फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं उसमें हमने जो लिखा है वो पूरा सही तरह से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप एक बार चेक करोगे, उसके बाद हमें भेजोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से आप लोगों को ये लिखना है। अब इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब हम देखते हैं आगे पेपर कैसे लेना है और क्या करना है, किस तरह से आपको भेजना है। बच्चों अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमें पेपर किस तरह से लिखना है। चलो अब आपको ये समझ में आया पेपर कैसे लिखना है। अब हमें पेपर कैसे भेजना है अब वो आप लोग समझोगे। देखो बच्चों, आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोगों का पेपर 7:30 बजे से शुरू हो रहा है। आपको 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आपके ग्रुप में मिल जाएगा। अब आप लोग लिखना शुरू करोगे। अब जो समय आप लोगों को दिया गया है टाइम टेबल में, जो टाइम आपको दिया गया है, ठीक उसके आधे घंटे बाद आप लोग क्या करोगे, अपने ग्रुप में अपने आंसर शीट का PDF बनाकर भेजोगे। उसके बाद 2 बजे तक का आपका जो आंसर पेपर है, जो हार्ड कॉपी है आपकी, उसको आपको विद्यालय में आकर जमा करना। ये बात जो बॉम्बे में रहते हैं उन बच्चों के लिए। अब जो बच्चे बॉम्बे के बाहर रहते हैं उनको क्या करना है, उनको भी ठीक उसी तरह से करना है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। अब क्या चेंज है, आपको भी ठीक उसी तरह से 7:20 पे पेपर मिलेगा। आपको वहाँ से लिखना शुरू करना है। आधे घंटे के पेपर का जो टाइमिंग दिया गया है उसके बाद मतलब आधे घंटे के अंदर आप लोगों को उसका फ़ोटो खींचकर PDF बनाकर आपको ग्रुप में भेजना है। अभी आप लोग तो बॉम्बे में हो नहीं, तो पेपर कैसे दोगे, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी जो हार्ड कॉपी है उसको संभाल के अपने पास रखोगे। और जब आप लोग विद्यालय आओगे, किसी कारण कोविड-19 ख़त्म हो जाता है और आप लोग जब बॉम्बे में आते हो, तो आप लोग क्या करोगे, अपने आंसर शीट विद्यालय में आकर जमा करोगे। इस तरह से बच्चों आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है। बच्चों अब आपको समझ में आया ही होगा कि किस तरह से हमें ऑनलाइन पद्धति से एग्ज़ाम देना है। अभी आपको सारी बातें बताई गई है, तो आप लोग समय के अनुसार कार्य करो। जो समय आपको दिया गया है उस समय के अंदर है कि आप लोग पूरा पेपर लिखो, पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को पेपर लिखना है। सबको बेस्ट ऑफ लक बच्चों।